5 सेकंड्स में एग्जाम शुरू होने वाला था। सबके हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद एंड सब आखिरी बार भगवान से अपनी प्रार्थनाएं मांग रहे थे। 3 seconds to go. 2, 1, and the bell rings. First question of JEE Mains was there on my screen, and I still remember it was a question on parabola, which was my strong topic. I started solving it and almost got a solution, but जब मैंने options check किए, तो none of them matched my answer. मैं थोड़ा सा panic हुआ, but I still moved on to the next question. वो भी नहीं बना. Then next. वो भी नहीं हुआ, and in first 12 minutes I was not even able to solve a single question. Hey everyone, I am Srimay Somani, currently a third year engineering student at Scalar School of Technology, and in this video I'll be sharing my last day before JEE Mains and what are the learnings that you should take from it. Just 5 days are left and I was peacefully sleeping. बट एक अंदर से चुल थी कि यार आज एक आखिरी मॉक टेस्ट देते हैं। उस टाइम मैंने द किंग ऑफ कोचिंग माफिया की टेस्ट सीरीज ले रखी थी एंड सुबह सुबह मैं एग्जाम सेंटर पहुंच जाता हूँ फॉर मॉक टेस्ट। ये पहली टेस्ट थी जिसमें क्वेश्चन से ज्यादा मेरे आंसर्स आ रहे थे। आई नो ये बड़ी चटपटी सी स्टेटमेंट है, बट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता, उसका आंसर आता एंड वो आंसर ऑप्शंस में नहीं रहता। मैं उसको फिर से सॉल्व करता, एक नया आंसर आता एंड वो भी आंसर ऑप्शंस में नहीं रहता। I mean, all of this happening just 5 days before my JEE Mains exam makes it even worse. At the end of this mock test, I was able to score 53 marks out of 300, and that gave me flashbacks. Flashbacks of all the time I have wasted in scrolling. The amount of time I could have saved if I skipped cricket. The flashback of my first ever test, in which I scored much more than the one I gave today after studying genuinely for 2 years. But जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था, I was a very positive human being. मैं रोया, मैं बहुत रोया घर आने के बाद, but once that 1 hour was done, I simply stopped. पूरे दिमाग का फैक्ट्री रीसेट किया and assumed कि जो भी अभी तक हुआ है was just a bad dream. And my day starts from now. बचे हुए दिन में मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन किया and tried to achieve all my targets for that particular day and then just slept. New day, new morning. But the heart was racing a little faster because there was this sense of anxiety and excitement as the final day of exam was approaching closer. My plans for today was just to complete 5 hours of revision and another 5 hours of question solving. And same चीज मैंने अगले 2 दिन भी करी. But अब I was into the final day. Just 1 दिन before my JEE Mains first attempt. I wanted to keep this day very simple, so I planned to study for like 4-5 hours and create that momentum for the next day. I started my day. Sat with some maths questions, but यार अचानक से मैं blank हो रहा था. ऐसा लग रहा था कि मैं सब भूल रहा हूँ. एंड देन अचानक कुछ मिनट बाद वो फॉर्मूला याद भी आ जाता था। बट दिस हैपनिंग जस्ट अ डे बिफोर एग्जाम एंड द थॉट कि दिस माइट हैपन इवन इन एग्जाम वाज स्कैरी। फॉर दैट वन पर्टिकुलर आवर माय ब्रेन वाज फिल्ड विद ऑल द नेगेटिव थॉट्स दैट अ जेईई एस्पिरेंट कैन एवर हैव। एंड देन मैंने वही किया जो मैं आज तक करते आ रहा था। Played cricket for half an hour and things felt much better. For rest of the day, मैंने सिर्फ revision पे focus किया and by evening 6-7 PM I was done with the last stretch of my study. उसके बाद मैंने सारे छोटे छोटे काम जैसे हॉल टिकट प्रिंट कराना, नए पेन लेके आना, खाना खाना एक्सेट्रा कंप्लीट किए. And then went on YouTube for the last piece of motivation. Before sleeping, मैंने खुद से थोड़ी बातें की कि तू पिछले 2 साल से एफर्ट्स डाल रहा है, तूने अपना 100% दिया है, तो जो हो सकता है तूने सब कुछ किया है. सो नाउ इट्स टाइम टू काम डाउन एंड कल अपने बेस्ट माइंडसेट के साथ एग्जाम दे के आएंगे और उसके बाद जो भी होता है लेट्स एक्सेप्ट दैट. तकरीबन 9-9:30 बजे तक मैं सोने चले गया था, बट 11 बजे तक मैं ढंग से सो ही नहीं पाया. ऑल दिस थॉट्स ऑफ कि व्हाट इफ मेरी एग्जाम क्लियर ना हो, पेरेंट्स जो इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं उन पे मैं खड़ा ना हो पाऊँ, एक्सेट्रा दिमाग में घूमे जा रहे थे. बट यही सोचते सोचते आई फाइनली फेल्ट asleep. 5:30 AM in the morning and I woke up on the first bell of alarm. अपनी सारी मॉर्निंग चर्या कंप्लीट करी एंड भगवान एंड बड़ों का आशीर्वाद ले आई लेफ्ट फॉर द एग्जाम एट 7:40 AM ऑन अ चिल मॉर्निंग. इसके पहले भी मैंने काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दी थी तो नर्वसनेस थोड़ी कंट्रोल थी. बट वंस आई रीच द एग्जाम सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मैंने इतने बच्चे देखे थे. आज भी वो विजुअल्स क्लियर है मेरे दिमाग में एंड आई स्टिल रिमेंबर द अमाउंट ऑफ एंजाइटी जो मुझे ये सोच के हुई थी कि प्रोबेबली ऑल 1000 ऑफ अस इन दिस बिल्डिंग are aiming for those same 10 seats in IITs because that's the selection ratio. 0.01%. अब इसके बाद जो ड्रामा हुआ ना उसमें मेरी साल भर की कसरत निकल गई. तो यार एक बार सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होता है, उसके बाद तुम्हारा हॉल टिकट स्कैन करते हैं एंड तुमको बताते हैं कि तुम्हें कौन सा सेक्शन में कहाँ जाके बैठना है. तो मेरा हॉल टिकट स्कैन हुआ एंड उन्होंने कुछ आर बोला था ऑन 3rd फ्लोर. अब मैंने गलत सुन लिया, मैंने सुना एल, तो मैं 3rd फ्लोर पे चले गया एंड एल ढूंढने लगा.
अब एक तो बड़े बड़े हॉल में को एल कहीं मिला ही नहीं। मैंने वहाँ पे इन्विजिलेटर से पूछा कि मैम मेरा एल सेक्शन है, कहाँ है? वो बोले थर्ड फ्लोर पे है ही नहीं, एल ग्राउंड फ्लोर पे है। तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे आया कि चलो ठीक है एल ढूंढता हूँ। अब मैं बड़े बड़े हॉल एकदम लास्ट में जो अंदर घुस घुस के जितना होता है ना, वहाँ पे एल मिला फाइनली। अब वो टीचर के पास गया, इन्विजिलेटर के पास कि मैम कहाँ बैठना है बताओ, श्रीमा सोमानी मेरा नाम है। वो बोले हैं ये तो नाम ही नहीं है। मैं बोला हैं ऐसा कैसा, मेरे को तो यही बोला। वो बोले नहीं 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 वापस जाके चेक करो। तो मैं बाहर आया, अब बाहर आया मेरा वापस स्कैन करवाया एंड वो एक तो इतना फटाफट बोल रहे थे, मतलब बहुत गर्दी थी ना तो बहुत फास्ट बोल रहे थे, मेरे को सुना ही नहीं दिया। मैं वापस कंफ्यूज हो गया। तो मैं 2 मिनट के लिए रुका कि ठीक है वापस 2 मिनट बाद आराम से पूछते हैं। अब मैंने 2 मिनट बाद वापस से पूछा। अब वो इन्विजिलेटर हो गया, मतलब वो हो गया गुस्सा भाई। उसने मेरा हॉल टिकट खींचा, पेन निकाला एंड उस पर लिख के दिया आर थर्ड फ्लोर। मैं बोला सही है, ये भी अच्छी बात है, मतलब कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। मैं आर पे चले गया, थर्ड फ्लोर पे चले गया एंड जाके मेरी जगह पे बैठ गया। अब एग्ज़ाम में कुछ 30-40 मिनट अभी भी बचे थे एंड जब मैं एग्ज़ाम हॉल में जाता हूँ ना, मैं सबसे पहली चीज़ जो करता हूँ वो वॉशरूम ढूंढता हूँ। क्योंकि फॉर सम रीज़न मुझे नहीं पता कैसे, बट जब भी मैं एग्ज़ाम में अटकता हूँ या मुझे कुछ नहीं सूझता है ना, मैं वॉशरूम चले जाता हूँ एंड थिंग्स समहाउ वर्क आउट। अब क्यों होता है इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, बट हो जाता है। बचे हुए 30 मिनट मैंने एग्ज़ाम का जो पूरा प्रेशर रहता है वो सोक इन किया एंड आई फील एग्ज़ाम सेंटर पे आप जितना टाइम स्पेंड करते हो उतना वो प्रेशर कम होते जाता है। बट नाउ इट वॉज द टाइम। 5 सेकेंड्स में एग्जाम शुरू होने वाला था। सबके हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद एंड सब आखिरी बार भगवान से अपनी प्रार्थनाएं मांग रहे थे। 3 seconds to go. 2, 1 and the bell rings. First question of JEE Mains was there on my screen and I still remember it was a question on parabola which was my strong topic. I started solving it and almost got a solution, but जब मैंने options check किए तो none of them matched my answer. मैं थोड़ा सा पैनिक हुआ, but I still moved on to the next question. वो भी नहीं बना, then next, वो भी नहीं हुआ and in first 12 minutes I was not even able to solve a single question. In first 40 minutes मेरे maths के बस 5 questions बने थे and I was beyond terrified. क्योंकि इन एग्जाम्स लाइक जेई जहाँ तुम्हें एक क्वेश्चन करने के लिए 2.4 मिनट्स का टाइम मिलता है, वहाँ मैंने ऑलरेडी पर क्वेश्चन 8 मिनट डाल दिए थे। बट देन मैंने मैथ्स पे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया एंड केमिस्ट्री पे मूव ऑन कर गया। फर्स्ट क्वेश्चन डन, सेकंड डन, थर्ड डन एंड धीरे धीरे मेरी केमिस्ट्री में 17 से 18 क्वेश्चन इन नेक्स्ट 40 मिनट्स बन गए थे। दिस गेव मी द मच नीडेड कॉन्फिडेंस एंड काम एंड देन मैं फिजिक्स में मूव ऑन किया। इन नेक्स्ट 1 आवर मेरे फिजिक्स के भी 20 क्वेश्चंस बन गए थे एंड देन मैं फिर से केमिस्ट्री पे आया एंड इन नेक्स्ट 15 मिनट्स मेरे और 3 क्वेश्चंस बन गए। अब बस 25 से 30 मिनट बचे थे एंड मैंने वो पूरा टाइम मैथ्स पे डेडिकेट कर दिया। एट द एंड ऑफ 3 hours आई वाज एबल टू सॉल्व 21 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स एंड 10 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। एंड जैसे ही वो स्क्रीन रीलोड हुई मेरे चेहरे पे वो हंसी थी कि यार कहाँ 5 दिन पहले मैं मॉक्स में 53 मार्क्स स्कोर कर रहा था एंड कहाँ 5 दिन बाद मैंने एक्चुअल एग्जाम में 51 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर से बाहर आया मुझे पापा दिख चुके थे एंड जैसे ही पापा ने देखा कि मेरे चेहरे पे वो बड़ी सी स्माइल है, वो समझ चुके थे कि यार एग्जाम काफी अच्छा गया है एंड उनके भी चेहरे पे वो प्यारी सी स्माइल आ गई थी। देन मैं घर आया, सबको बताया कि एग्जाम काफी अच्छा गया है एंड फाइनली दैट नाइट आई स्लेप्ट विद द सैटिस्फैक्शन कि यार 2 साल की मेहनत अब रंग लाने वाली है। I ended up scoring 98.06 percentile in JEE Mains, which definitely might not be that good for a lot of you, but for me at that particular time it meant everything. If video को यहाँ तक देखा है ना तो definitely channel को subscribe कर लेना and don't forget to leave a comment. Also, if you have any doubts, you can join the WhatsApp community or message me on Instagram. Links are there in the description. I'll see you in the next one. All the very best. Bye bye.